Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new poem of class 6 from unit number 8, and the name of the poem is Vocation, which is written by Rabindranath Tagore. So, what is vocation? Vocation is the employment or main occupation which is used टू रन अ फैमिली. तो वोकेशन का मतलब क्या होता है? मेन हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है या हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है जिसके थ्रू हम अपने फैमिली के नीड्स को फुलफ़िल करते हैं. टीचर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है. ठीक है, अपने प्रोफेशन से आप क्या करते हो? अपना परिवार का जो भी एक्सपेंसेस हैं आप उस एक्सपेंसेस को फुलफ़िल करते हो. तो वोकेशन का मीनिंग ये है. So what happens in this poem is there is a small child who wants to become a hawker, a gardener and a watchman because he feels that they all are very independent as he is unaware about the hardships faced by them. At first, he wants to become a hawker as he feels that he can move anywhere without any hurry. And then he wants to become a gardener because even if he is going to make his clothes dirty, nobody is going to scold him. And at last, he wants to become a watchman because he wants to chase his shadow during the night time using a lantern in his hands. On your way to school or market, you see many people at work. जब भी आप स्कूल जाते हो ना, या तो आप स्कूल जाते हो सुबह या तो मार्केट जाते हो संडे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप रास्ते में बहुत सारे लोगों को देखते हो. आप आइसक्रीम मैन को देखते हो, आप जो बैंगल्स भेजते हैं गली गली घूम के उनको देखते हो, बहुत सारे लोगों को आप देखते हो. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. तब आप किन किन को देखते हो तो आप आपस में बात करके डिस्कस करके अपना ओपिनियंस को शेयर कीजिए. देन रीड द पोयम. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ़ यू लाइक. तो अभी एक ये पोयम को आपको रीड करना है. तो जब हम स्कूल जाते वक्त या आते वक्त हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे वेंडर्स को देखते हैं जो अपने बैंगल्स हो गया, आइसक्रीम हो गया या वेजिटेबल्स हो गया, ये लोग भेजते रहते हैं. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker. तो जब भी हम स्कूल जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं. तो हम किन किन लोगों को देखते हैं? ये पोयम में एक चाइल्ड है, वो किन किन लोगों को देखता है और उन लोगों के बारे में क्या सोचता है, ये पोयम में हम अभी लर्न करेंगे. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying, "Bangles, crystal bangles." When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of the house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life.
I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane. गोंग का मतलब होता है एक मेटल डिस्क, आप उसको अगर हिट करोगे तो वो बहुत ही ज़ोर से आवाज़ करेगा. गोंग का मतलब होता है बेल. When the gong sounds 10 in the morning, जब सुबह 10 बजता है, and I walk to school by our lane, और मैं स्कूल जाता हूँ. by our lane मतलब एक पर्टिकुलर रास्ता होता है जिसे आप यूज़ करके स्कूल जाते हो. तो बच्चा बोल रहा है जब सुबह गॉन्ग मतलब मेटल डिस्क में जब 10 साउंड होता है, जब सुबह 10 बजे होता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ. वो रास्ते को यूज़ करके, जो रास्ता मैं डेली यूज़ करता हूँ वही रास्ता मैं यूज़ करके स्कूल जाता हूँ. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. और जब भी मैं स्कूल जाता हूँ हर दिन मैं एक सेलर को देखता हूँ. हॉकर मतलब जो घूम घूम के एक जगह से दूसरी जगह सेलिंग करते हैं. तो वो क्या भेज रहे होते हैं, बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. बैंगल्स यानी वो चूड़ियाँ भेज रहे होते हैं. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. तो उसको कोई जल्दी नहीं है. जब स्कूल पहुंचना है तो पर्टिकुलर टाइम होगा, अराइविंग टाइम होगा, क्लासेस के टाइम होंगे, फिर डिपार्चर टाइम होगा. ठीक है, किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे क्लास होना है, किस टाइम पे स्कूल से निकलना है, सारा टाइम फिक्स्ड है. लेकिन ये जो बैंगल जो भेज रहा है ना, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है. देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन. वो कभी भी जल्दी में नहीं होते. वो सुबह आते हैं, अपने बैंगल्स को गली गली भेजते हैं, फिर अपने हिसाब से वो घर में जाते. कभी शाम में जाते हैं, जब भी बैंगल्स बिक जाते हैं, तो कभी कभी दोपहर में ही चले जाते हैं. देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक. उनका कोई फिक्स रोड नहीं है. जैसे हम स्कूल जाते हैं तो एक फिक्स रोड यूज़ करके जाते हैं, लेकिन जो बैंगल्स भेजते हैं वो कौन से गली में जाएंगे, कौन सा रोड यूज़ करेंगे, उनका कोई रोड फिक्स नहीं होगा. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. ऐसा कोई रूल नहीं है कि यही प्लेस में उसको जाना है. उसको जहाँ मर्जी वो जहाँ उस गली में जाके वो अपना बैंगल्स भेजेगा. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि वो इस टाइम पे घर पहुंच जाएंगे. ठीक है, जब बैंगल्स उनका जिस दिन अच्छे से बिक्री हो रहा होगा, सेल हो रहा होगा, वो भेज के आएंगे तो लेट होगा. कभी कभी बिक्री नहीं होता तो घूम घूम के जल्दी आ जाएंगे. तो बच्चा बोल रहा है कि वो कभी जल्दी में नहीं होते, जहाँ मन मर्जी उस गली में चले जाते हैं, और घर लौटने का भी उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है. वो कितने आराम से इस गली से उस गली घूमते हैं. आई विश आई वेर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड. अभी बच्चा चाहता है कि मैं स्कूल ना जाऊँ, मैं हॉकर ही बन जाऊँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे स्कूल नहीं जाना है. क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. क्राइंग यानी मैं अभी हॉकर बन जाऊंगा और घर गली गली जाके क्राइंग यानी चिल्लाऊंगा, चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो. तो वो अभी हॉकर बनना चाहता है. क्यों? क्योंकि हॉकर बनने से आपका जहाँ मर्जी आप जा सकते हो, आप हमें कभी जल्दी में नहीं रहते हो, और आप जब चाहे तब घर को लौट के आओगे. आपका कोई फिक्स टाइम नहीं होगा कि घर कब लौट के आना है. When at 4 in the afternoon I come back from the school. बच्चा बोल रहा है कि जब स्कूल 10 बजे वो गया था, और जब वो 4 o'clock को स्कूल से रिटर्न आ रहा होता है, वापस आते समय वो क्या देखता है, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. तो बच्चा जब स्कूल से वापस आ रहा होता है, एक घर को देखता है, और वो घर के सामने जो गेट होता है, वो गेट के थ्रू, ये घर है और ये गेट है, और बच्चा जब वहाँ से पास हो रहा होता है, वो गेट के थ्रू देखता है कि जो गार्डनर है, जो माली है, वो क्या कर रहा है, मिट्टी की खुदाई कर रहा है, मतलब ग्राउंड को लूज कर रहा है. ग्राउंड को लूज करने से क्या होगा, प्लांट्स लगाओगे तो अच्छे से वाटर सॉइल एब्जॉर्ब करेगा. तो गार्डनर क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था सॉइल. He does what he likes with his spade. He soils his cloth with dust. तो he does what he likes. उसको जो मर्जी वो कर रहा है,
और क्या, किससे वो डिगिंग कर रहा है? स्पेड। तो स्पेड क्या होता है? एक मेटल ब्लेड होता है और उसका एक लॉन्ग हैंडल होता है, नीचे एक मेटल ब्लेड होता है, लॉन्ग हैंडल होता है, और उसको यूज़ करके आप मिट्टी को डिग करते हो। और ही डज वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, वो अपना मन मर्जी मिट्टी का खुदाई कर रहा है गार्डन में, और वो अपने ही सॉइल्स हिज क्लोथ्स, मतलब वो अपने, और इस प्रोसेस में उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं, उसके कपड़ों पे मिट्टी लग जाता है। Nobody takes him to task, टास्क मतलब कोई उसे डांटता नहीं है, Nobody scolds him, कोई उसे डांटता नहीं है। लेकिन हम अगर अपने कपड़े, स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर थोड़ा कहीं पे मिट्टी विट्टी लग गया खेल के, तो हमें तो डांट पड़ता है। लेकिन ये जो गार्डनर है आराम से स्पेड लेके खुदाई कर रहा है, उसके कपड़ों पे बहुत जगहों पे मिट्टी लगा है, गंदा हो गया है उसके कपड़े, पर कोई भी उसे डांटता नहीं है। इफ़ ही गेट्स बेक्ड इन द सन और गेट्स वेट, वो दोपहर में मतलब काम करता है, तो मतलब बेक मतलब जब सूरज का तापमान एकदम तीव्र होता है दोपहर का समय, और उस गर्मी में भी वो काम करता है, और जब बारिश भी होता है तो गार्डनर उस टाइम पे भी काम करता है और उसको कोई कुछ नहीं बोलता। आई विश आई वेर ए गार्डनर डिगिंग अवे द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। अब बच्चे को जब रिटर्न हो रहा होता 4 बजे, तो उसको लगता है कि अरे मुझे तो गार्डनर बनना है, क्योंकि मैं मिट्टी का खुदाई करूँगा और मेरे कपड़े भी गंदे होंगे और कोई भी मुझे कुछ नहीं बोलेगा। तो गार्डनर होने में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, ऐसे बच्चे को लगता है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, जब सनसेट हो जाता है इवनिंग में तो डार्कनेस हो जाता है, तब बच्चे की माँ उसको भेजती है कि जा बच्चा तू सो जा, जा बच्चा तू सो जा। मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और बच्चे के रूम में, जिस रूम में वो सोता है, उस रूम में एक खिड़की है, और जब बच्चा खिड़की खोल के देखता है, वो देखता है कि वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो वॉचमैन है, ठीक है, जो वॉचमैन यानी रखवाला है, जो वो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में वो वहाँ पे चल रहे हैं ग्राउंड पे। द लेन इज डार्क एंड लोनली, और वो जो रास्ते पे वो वॉचमैन चल रहा है वो एकदम अंधेरा है और कोई नहीं है, क्योंकि रात में हर कोई अपने अपने घर में रहता है और सोते हैं, लेकिन वॉचमैन का काम सोना नहीं होता, वॉचमैन का काम है रात में रखवाला करना। तो एकदम वो जो रोड है एकदम लोनली है, कोई नहीं है और पूरा अंधेरा है, मात्र वॉचमैन भी वहाँ पे है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और वहाँ पे उस गली में एक बड़ा सा स्ट्रीट लैम्प है और उसके हेड से, मतलब उसके ऊपर क्या है, रेड लाइट लगा है, और वो रेड लाइट नीचे गिर रहा है, और वो स्ट्रीट लैम्प कैसे दिख रहा है, एकदम जाइंट यानी बहुत बड़ा दिख रहा है, मॉन्स्टर के जैसे। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड। तो वॉचमैन क्या पकड़े हैं, वॉक्स विथ हिज लैंटर्न, लैंटर्न अपने हाथ में पकड़े हुए आगे पीछे होकर घूम रहे हैं, विथ हिज शैडो एट हिज साइड। तो शैडो कब फॉर्म होता है, जहाँ पे लाइट गिरता है, तो वॉचमैन का साथ कौन है, अभी उसका शैडो भी वॉचमैन के साथ आगे पीछे घूम रहा है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और ये जो वॉचमैन है कभी भी नाइट टाइम सोते नहीं है। जब भी बच्चा देखता है खिड़की खोल के, जब रात के समय वो देखता है कि वॉचमैन वो रेड मॉन्स्टर स्ट्रीट लाइट के नीचे वॉकिंग कर रहे होते हैं एक लैंटर्न पकड़ के, और उनका शैडो उनको फॉलो कर रहा होता है, और बच्चे को भी वो करने का मन होता है, उसको सोने का मन नहीं करता रात में। And never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadows with my lantern. तो बोलता है, अभी बच्चा सोच रहा था कि काश मैं वॉचमैन होता तो मुझे रात में सोना ना पड़ता, मैं आराम से जाके स्ट्रीट लाइट के नीचे अपने हाथ में लैंटर्न पकड़ते हुए चलता और मेरा शैडो मुझे चेस करता, यानी मेरा शैडो, चेजिंग का मतलब मेरा शैडो मुझे फॉलो करता। सो दैट इज ऑल, एंड इफ यू
like this video, please give it a like, share it to the maximum. And if you are watching our channel for the first time, please subscribe our channel to get the latest educational content of West Bengal Board, Odisha Board, CBSE and ICSE courses. This channel is providing you free education in Bengali, Hindi, Odia and English language. Until then, keep learning, keep sharing, take care and stay connected with us. Thank you.